The fundamental truth is, without the feeling of fraternity, there can be no genuine equality. And without equality, fraternity becomes a hollow rhetoric. Actually, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ. एंड जैसे राहुल जी ने कहा, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का दस्तावेज है, द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, is not as if it became a law suddenly in 1947-48. It is something that was part of a culture, part of our ethos, and part of our community understanding for thousands of years. जो हजारों साल का हमारी सोच थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने उसको एक डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर करके एक सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट बना दिया. मगर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं फ्लैग करना चाहता हूं, शॉर्ट में करूंगा. जैसे देयर इज अ अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मैं कहता हूं वुमेन्स राइट्स. आपको पता है, इन रूरल इंडिया वुमेन वर्क मोर आवर्स देन मेन बट अर्न लेस. माने रूरल गांव में विमेन का काम पुरुषों से ज्यादा होता है, बट उनकी कमाई उनसे कम होती है. दे कॉन्ट्रीब्यूट 60% ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन रूरल इंडिया, सर, एंड but own only 30% of agricultural land. 60% labor and 13% land. I know for certain, and this is a campaign I'm going to start all India very soon with all the NGOs, 40% of rural girls at the time of menstruation are not going to school. 40% of girls in the stress period do not go to school. And this is a huge thing which we are going to take up on an all India basis in different states with NGOs to educate, to prepare, and to make them attend schools. Similarly, I would like to say in urban India, women force participation has declined from 34% to 20% in recent decades. But the violence statistics against women is enormous. You know, in 22 alone, sir, 31,516 rape cases were registered against women. 31,516 rape cases. हम किस समाज में रह रहे हैं? What is the kind of country we are living in? And how are we accepting all this in this country? 10,000 victims were minors out of this 31,000. What I'm trying to say is, I'm not saying, I mean, if I give you the statistics, I have statistics of Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, in thousands. And these are only reported cases. So मेरा ये कहना है, देखिए, sooner or later, 1/3 reservation is coming for women. It may take time, but it has to come. सबसे पहले तो we should prepare our party with women leaders. Unless we prepare our party with women leaders, where will you have those 1/3 people fighting? ये कहाँ से आएंगी? And I don't want सरपंच पत्नी and जनपद पत्नी. All that has to, you must have women leaders. So start encouraging women leaders from today, give them responsible jobs and make them feel important. The second point that I want to make is the rule of law is under threat. जो हमारी कानून की व्यवस्था है, इस वक्त बहुत threat पे है. There is unaccounted violence. Failure of rule of law is writ large when we hear that no perpetrator of violence in Malegaon, निठारी और बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट. अब इतने लोग बॉम्ब ब्लास्ट होता है, पीपल डाई, देयर इज मेहम, बर्बादी होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रायल होता है और सब बरी हो जाते हैं. ये कैसी व्यवस्था है? 18 साल, 17 years, the trial goes on. Somewhere, sir, the Congress party must now also insist for judicial reforms, for reforms in investigation, for reform in prosecution. देखिए,
terrorist has no language, he has no religion, he has no region. A terrorist is a terrorist. चाहे कोई पार्टी पावर में हो, a crime is a crime, and the criminal must be always punished and should not go unpunished. So actually, personally speaking, I'm a great votary of independent investigating agencies, independent prosecution, और आगे पीछे अगर हमको इस देश को स्वस्थ बनाना है, हमारे प्रजातंत्र को स्वस्थ बनाना है, सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो जरूरी है कि हम अपनी कानून व्यवस्था, जुडिशियल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और प्रोसिक्यूशन को भी मजबूत करें. और ये भी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा प्लैंक होना चाहिए, बिकॉज जस्टिस के बिना देयर कैन बी नो कम्युनिटी, जस्टिस के बिना देयर कैन बी नो समाज, जस्टिस के बिना देयर कैन बी नो कंट्री. तो जस्टिस इज द प्लैंक, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी आर इट्स टू लिम्स. देन मैं एक बात बोलना चाहूंगा, सोशल जस्टिस हैज बिकम एन इम्पॉसिबल थिंग. बहुत डिफिकल्ट हो गया टू इन्फोर्स सोशल जस्टिस. हाउ कैन अ दलित वुमन गेट जस्टिस अगेंस्ट अपर कास्ट वायलेंस इफ द पुलिस रिफ्यूजेस टू रजिस्टर एन FIR? हमको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 24 घंटे में पुलिस बाध्य है कि FIR लिखेगी, बट किसी की FIR लिखी जाती है? मध्य प्रदेश में तो मुझे पता है, छत्तीसगढ़ में मुझे पता है, बघेल जी नहीं है, पूछिए. जब तक बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हामी नहीं भरता है तो पुलिस TI जो है FIR लिखता नहीं है. तो हमको ये जो सिस्टम्स है जो क्रिएट हो गए हैं एंड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम इनके बारे में सोचे. हाउ कैन अ ट्राइबल फैमिली प्रोटेक्ट एंसेस्ट्रल लैंड इफ कोर्ट्स आर कैप्चर्ड बाय माइनिंग लॉबीज? माइनिंग लॉबीज आपके ट्राइबल लैंड में घुस चुकी हैं. उनको एनवायरमेंट क्लियरेंस भी बड़े आराम से मिल जाता है. there is hardly any fight at the lower level. कोई स्ट्रगल नहीं होता आजकल. Systems are well captured. So how will they fight? Those farmers will fight. तीसरा, how can a Muslim, a Christian, a Sikh, a Buddhist or Jain get fair treatment? छत्तीसगढ़ की 2 नन्स को अरेस्ट करके जेल भेज दिया है. उनका क्या अपराध था? अगर वो अपने कम्युनिटी की लेडीज को जॉब दिला रही हैं और जॉब के लिए कहीं लेके जा रही हैं, क्या ये अपराध है? और कुछ बजरंग दल और दुनिया भर के एक्टिविस्ट आ जाते हैं, वहां पर शोर मचाते हैं, पुलिस गेट्स एक्टिव एंड अरेस्ट दोज लेडीज. ये पूरे हिंदी हिंटरलैंड में हो रहा है. ये खाली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात नहीं है. राय साहब बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की भी ये हालत है, बिहार की भी यह हालत है. और जब तक हम इन व्यवस्थाओं के बारे में ठीक करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कांग्रेस हैज बीन अ पार्टी ऑफ आइडियाज. द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज एन आइडिया. अगर हम न्यू आइडियाज को लेके एक नई कांग्रेस को तैयार नहीं करेंगे तो हम ये पुराने आइडियाज को लेके चलते रहेंगे. उस आइडियाज से तो ठीक है, तो कोई भी चला सकता है, कोई भी चल सकता है, क्या फर्क पड़ता है फिर? अगर हमको देश को बदलना है, सुरक्षित रखना है, हमको एक न्यू आइडियाज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. इसी तरह मैं बताना चाहता हूं रूरल इनइक्वालिटी. मेरे पास सरपंच लोग आए, राष्ट्रीय जो संघ है सरपंचों का, हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो सरपंचों का संघ है, कल ही आए की बात है, कल या परसों की बात है. कहते सर हम लोगों को पंगु कर दिया गया उनकी भाषा में, मतलब हमको जीरो बना दिया गया है सरपंचों को. जो बीजेपी की पार्टी डिसाइड करती है कि कितना पैसा कहाँ आएगा कहाँ जाएगा, सरपंचों की तो कोई वैल्यू नहीं है. और जो थोड़े से रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं उनको कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है, उनको नोटिस मिल जाते हैं. और सबसे बड़ी बात है जो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, सर मिस्टर चिदम्बरम, इन द बजट ऑफ पंचायत नाउ बीजेपी हैज पुट अप बजट फॉर publicity and inauguration. So if they have 100 rupees, if they get for village development, 20 rupees is supposed to be spent on publicity and inauguration. What is all this happening in this country? And why aren't we protesting? The main thing is there has to be a loud protest and we have to fight against all this. In the end, I mean, without going further, I would like to say that the path forward is that the relationship between the individual and the society must be understood.
Law is not personal. Law is social. Our constitution is not for us politicians, but for the people. All people, equally and fraternally. Thank you. Jai Hind.